इंदौर के रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारियों की दुकानों पर लगे इस बोर्ड में लिखा है कि साइबर फ्रॉड की संभावनाओं के चलते ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इंदौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाओं ने रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों को परेशान कर दिया है। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ভিডিও। তো আজকের টপিকটা আপনাকে অবশ্যই জেনে রাখা দরকার, কারণ এখন বর্তমানে এত ফ্রড হচ্ছে, এত পরিমাণে ফ্রড হচ্ছে যে ফ্রডের পরিমাণটা হয়তো আপনিও বুঝতে পারবেন না। আমি বর্তমান এই দু এক দিনের মধ্যে এতগুলো ফ্রডের রিপোর্ট আমার কাছে এসছে যে দাদা আমার অ্যাকাউন্টে এত টাকা আটকে গেছে, দাদা আমার মার্চেন্ট থেকে এত টাকা মাইনাস হয়ে গেছে, দাদা আমি আমার নিজের অ্যাকাউন্টটা অপারেট করতে পারছি না, আমার একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট রয়েছে যে অ্যাকাউন্টে আমি মার্চেন্ট কিউআর কোডে পেমেন্ট নিই এবং পেমেন্ট আমাকে কি করে আমার কাছে আসে না, দরকার পড়লে কাস্টমার যে টাকা পাঠাচ্ছে কাস্টমারকেই পাঠিয়ে দিচ্ছে টাকা। এইরকম কিন্তু সিচুয়েশন হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই যে আমরা ইউপিআই ব্যবহার করছি, ঠিক আছে, কি করছি, ব্যবহার করছি, সেই ইউপিআইটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। এখন মানুষ কি হয়েছে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কোনো একটা দোকানে কাজ করছি, গুড করে আমাদের ফোনপেতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে, এইরকম করে করে কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ইউপিআই ছাড়া এখন কিছু বোঝে না, ঠিক আছে। এবং যারা ফ্রড কিন্তু তারা কিন্তু ইউপিআইটাকেই কাজে লাগাচ্ছে। ইউপিআই এর মধ্যে এমন একটা সিস্টেম রয়েছে যে টাকাটা পাঠিয়ে আপনার কাছে ক্যাশ নিয়ে নিলাম, আমি একটু বাড়িতে গিয়ে সেখানে রিপোর্ট মেরে দিলাম যে হ্যাঁ এই টাকাটা আমার ভুল করে চলে গেছে ওই দাদার কাছে, তো আপনি টাকাটা রিটার্ন করে দেন। ইউপিআই কি করে আপনার ওই অ্যাকাউন্টে হোল্ড লাগিয়ে দেয় এবং চেষ্টা করে আপনার কাছ থেকে টাকাটা আবার রিটার্ন সেই কাস্টমারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সরকার কিন্তু এটা বুঝতে পারেনি যে এই ইউপিআই পেমেন্টটা এত ভয়ানক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। মানুষ কি করেছে, ইউপিআই এ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং আমাদের ইন্ডিয়া যেমন দেশ, আমাদের ভারতবর্ষ দেশ ইউপিআইটা অন্য জায়গায় প্রমোট করেছে, ঠিক আছে। অন্য অন্য দেশে কিন্তু ইউপিআই চলে না, আমাদের দেশেই কিন্তু প্রথম ইউপিআই চালু করেছিল এবং ইউপিআইটা আমাদের আদার্স যে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো রয়েছে তাদেরকে দিয়েছে, অনেকবার শুনেছি আমি নিউজে দিয়েছে, ঠিক আছে। এখন বর্তমানে আমাদের ইন্ডিয়াতেই কিন্তু এটা আমাদের উপর কি হচ্ছে, হাবি হয়ে যাচ্ছে। কিরকম, আজকের আমি আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো, সেই ভিডিওটা হয়তো প্রথমে একটু ক্লিপগুলো দেখলেন, নেক্সট ভিডিওটা আমি এই যে ভিডিওর মধ্যেই দেখাবো সেই ভিডিওগুলো তারা বিজনেসম্যান যারা দোকানে করছে তারা কিভাবে এখন বর্তমান স্টেপ নিয়েছে, যত অবধি না সরকার এটা নিয়ে কোনো। असल में क्या हो रहा है कि भारत सरकार के एक पूरे देश में एक अभियान चला था कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लीजिए, हम लोग उस पे चले। बेहतर तरीका रहा, हमको भी लगता था कि आसान है, ग्राहक आता है पैसा पेमेंट हो जाता है, तो हमको उसकी खूब आसानी सी लगने लगी। बहरहाल बाद में अब जाके उस पे जब साइबर फ्रॉड का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने, हम समझते हैं कि सरकार को भी इस पे सोचना होगा कि इस तरीके के काम ना हो। व्यापारी बहुत परेशान हो रहा है, ग्राहक आता है, ग्राहक हमारा भगवान है, हम ये मानते हैं कि ग्राहक भगवान होता है और भगवान की सेवा हम करते हैं। हम माल बेचते हैं, माल का बिल देते हैं, टैक्स पे करते हैं और ग्राहक को माल दे देते हैं। भरोसे के साथ व्यापार चल रहा है, लेकिन भरोसे के पीछे इस तरह का वार हो जाए और हमारे खाते सीज हो जाए, ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। जब दुकानदार ने वजह जानने की कोशिश की कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ, तो पता चला कि साइबर फ्रॉड के कारण उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया था। নেক্সট স্টেপ নেয় তত অবধি আপনারা ইউপিআই টোটালি বন্ধ রাখুন, নিজে থেকে নিজে করুন ইউপিআই, অসুবিধা নাই। এমনকি নিজের বাড়ির কারো নেবেন না, কোনো ভাই বন্ধুর কারো কাছ থেকে নেবেন না, কোনো ইউপিআই নেবেন না, ঠিক আছে। কারণ একবার যদি আপনার সেরকম কেস লেগে যায় তাহলে কিন্তু অ্যাকাউন্ট আপনাদের টোটালি ব্লক হয়ে যাবে, আপনাদের যেগুলো ম্যান অ্যাকাউন্ট সেগুলোই ব্লক হবে। आने वाले टाइम में भी जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, हर चीज, हर पहलू उसका सही नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं नेगेटिव पहलू भी होता है जो साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, लेकिन आप भाग भी नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं भागने वाली अप्रोच हो गई है, क्योंकि देखिए आप, हमें ये मानना पड़ेगा कि आप आज के जमाने में इंटरनेट से भाग नहीं सकते, आप नई टेक्नोलॉजी से नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी चला रहे हैं, आप इन चीजों से घिरे रहेंगे, तो भागना हमारा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं कि यूपीआई इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप करिए इस्तेमाल, आप कैश का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में रखिए। वो चीजें दिमाग में रखेंगे तो आने वाले टाइम में स्कैम आप होने से आपके साथ बच सकता है। पहला कि आप हमेशा ये कहिए कि आपका जो यूपीआई है वो आपके मेन बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेन अकाउंट से कनेक्टेड है तो स्कैम हुआ तो आपके सीधा मेन जो अकाउंट है वो इंपैक्ट होगा। आप यूपीआई का एक और अकाउंट बना दीजिए और उसमें स्पेसिफिक अमाउंट रखिए, थोड़ा सा अमाउंट रखिए कि कल को अगर होती भी है, क्या कहते हैं, कल को स्कैम भी होता है तो वो थोड़े पैसे ही जाएं, वरना अगर आप एक এবার যারা ইউপিআই, ধরো যাদের ইউপিআই, যারা এই যে গভর্নমেন্ট জব যারা রয়েছে তারা বলছে অন্য অন্য অ্যাকাউন্ট ইউজ করো। আরে দাদা, যে অ্যাকাউন্টে তুমি ইউপিআই টাকা ঢোকাবা সেই অ্যাকাউন্টটাই ব্লক হবে, ঠিক আছে। এরকম করে করে আর একটা দোকানে তো আর ছোটো মোটো ইউপিআই হয় না যে 5 টাকা 10 টাকা হয়, কোনো কোনো দোকানে এমন হচ্ছে যে
2000 টাকা ইউপিআই করছে, কেউ 10,000 টাকা ইউপিআই করছে, কেউ 15,000 টাকা ইউপিআই করছে। বাস একটা পেমেন্ট আটকে গেলেই তো আমার লস হয়ে গেল 15,000 টাকা। তো আমি কেন ইউপিআই ব্যবহার করবো? আমি কেন নিজের রিস্ক নিয়ে ইউপিআই আমি চালু করবো? ঠিক আছে? তো টোটালি ইউপিআইটাকে একদম টোটালি বন্ধ করো। যারা আমার ভিডিও দেখছো তাদের জন্য আমি বলছি, ইউপিআইটাকে টোটালি বন্ধ করো। নিজেদের দোকানে যদি ইউপিআই লাগা থাকে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলো, না হলে কিন্তু এই প্রবলেমে আপনিও পড়তে পারেন। এবং ইউপিআই নিলে আপনি কি কি প্রবলেমে পড়বেন সেটা আপনাদের বলে দিই। ধরুন আপনি আমার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠালেন, সে বাড়ি থেকে রিপোর্ট মেরে দিল, আপনার অ্যাকাউন্টে টাকাটা তো হোল্ড হবেই, দ্বিতীয় হচ্ছে তার অ্যাকাউন্টে আবার রিটার্ন করে দিবে, এরকম সিস্টেম হচ্ছে। ঠিক আছে? আর বিশেষ করে রিটার্ন করতে না পারলে আপনার অ্যাকাউন্টে টোটালি একদম হোল্ড লাগিয়ে দিবে। যখন আপনি তদন্ত করে দেখবেন, সাইবার ক্রাইমে এখানে ওখানে যাবেন, তারপরে আপনার অ্যাকাউন্টটা খুলবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি ধরো কারো কাছ থেকে চুরি করে টাকা নিলাম, ফ্রড করে কোনো কিছুর নাম দিয়ে, সে রিপোর্ট মেরে দিল আমার অ্যাকাউন্টটাতে, আমার তো অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হবে। আমি যদি আপনাকে পাঠিয়ে দিই, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটাও কিন্তু টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে। এই ধরনের কিন্তু ফ্রডগুলো হচ্ছে। ঠিক আছে? তো আপনারা প্লিজ ইউপিআই নেবেন না। কালকে আমি 1 ঘন্টা ধরে ইউপিআই নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি, ভিডিও আপনারা দেখতে পারেন, এখানে লাইভ করেছিলাম আমি 1 ঘন্টা। সেখানে সমস্ত কিছু তথ্য আমি বলে দিয়েছি, কিভাবে ইউপিআই আপনার যে ফ্রড হলে চালু করতে হবে, কিভাবে আপনারা ইউপিআই কি করবেন, মানে ইউপিআই থেকে টাকা নেবেন, কি কি সিস্টেমে নেবেন, কেমনি আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবে, আর কার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার আগে কি কি আপনারা লিখে রাখবেন। ঠিক আছে? সমস্ত কিছু আলোচনা করেছি, আপনারা প্লিজ এই লাইভটা গিয়ে অবশ্যই দেখবেন। ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিও এইটুকুই। আর সম্পূর্ণ এই যে নিউজটা আমি নিয়েছি সেটা হচ্ছে গুড নিউজ থেকে, সেখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন এবং আমার ভিডিও ক্লিপগুলো আপনারা দেখতে পারেন। ঠিক আছে? তো চলো সেই ভিডিওটা দেখে নিই। তো আজকের ভিডিও এইটুকুই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিও, তখন দেখতে থাকো জাহাঙ্গীর দা টেকনিক্যাল। 2025 সালে আপনাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন জাহাঙ্গীর দা টেকনিক্যাল। চ্যানেলটাকে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। यूपीआई आने के बाद से देश में लेन देन का तरीका बेहद बदल गया। इसने एक तरीके से ऐसी क्रांति की जिससे आज की तारीख में करीब 90% से ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई से लेन देन तो आसान है ही, वहीं कई बार इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से यूपीआई तेजी से लोगों की पसंद भी बनता गया। लेकिन जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो यूपीआई में भी देखने को मिले। जहां एक तरफ यूपीआई लोगों के जीवन को आसान बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीआई जालसाजों की नजर से भी नहीं बचा। और यही वजह है कि अब जालसाजों की इस बार बार की प्रताड़ना से परेशान होकर के इंदौर के व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई के जरिए भुगतान को ही बंद कर दिया है। दरअसल यूपीआई से लेकर इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के चलते डिजिटल लेन देन अब आसान हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हालांकि यही वजह है कि यूपीआई और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े फ्रॉड भी आम हो चुके हैं और रोजाना तमाम लोग इनके शिकार बनते हैं। बताया जा रहा है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर एक ग्राहक यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के बाद वहां से सामान लेकर चला गया। ये पैसा दुकानदार के अकाउंट में आया और वो उस अकाउंट का उपयोग दूसरे व्यापारियों से लेन देन के लिए भी करते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस अकाउंट से पेमेंट के लिए चेक जारी किया तो वो बाउंस हो गया, जबकि अकाउंट में चेक अमाउंट से ज्यादा पैसा मौजूद था। असल में क्या हो रहा है कि भारत सरकार के एक पूरे देश में एक अभियान चला था कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लीजिए, हम लोग उस पर चले। बेहतर तरीका रहा, हमको भी लगता था कि आसान है, ग्राहक आता है, पैसा पेमेंट हो जाता है, तो हमको उसकी खूब आसानी सी लगने लगी। बहरहाल बाद में अब जाके उस पे जब साइबर फ्रॉड का सिलसिला शुरू हुआ, तो लोगों ने, हम समझते हैं कि सरकार को भी इस पे सोचना होगा कि इस तरीके के काम ना हो। व्यापारी बहुत परेशान हो रहा है। ग्राहक आता है, ग्राहक हमारा भगवान है, हम ये मानते हैं कि ग्राहक भगवान होता है और भगवान की सेवा हम करते हैं। हम माल बेचते हैं, माल का बिल देते हैं, टैक्स पे करते हैं और ग्राहक को माल दे देते हैं। भरोसे के साथ व्यापार चल रहा है। लेकिन भरोसे के पीछे इस तरह का वार हो जाए और हमारे खाते सीज हो जाए, ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। जब दुकानदार ने वजह जानने की कोशिश की कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ, तो पता चला कि साइबर फ्रॉड के कारण उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया था। असल में किसी ने फ्रॉड के तहत किसी को पैसे ट्रांसफर किए और वो पैसा अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से दुकानदार के खाते में आ गया और इस मामले की शिकायत पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से बैंक ने उसके खाते को ब्लॉक कर दिया। दुकानदार के मुताबिक दुकान पर बैंक का क्यूआर कोड लगा था, जिससे यूपीआई पेमेंट सीधी उनके बैंक खाते में आ जाती थी। इस पैसे से वे दूसरे व्यापारियों को चेक के जरिए भुगतान करते थे। इस घटना के बाद उन्होंने तय किया कि वे फिलहाल यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे, अब कैश और क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने सारी व्यवस्था के चलते हमने अभी हमारे कुछ व्यापारियों के खाते सीज हुए हैं
और उसके परिणाम ये गंभीर होने लगे कि पूरे के पूरे खाते सीज किए। पहले क्या होता था कि पेटीएम और या कोई भी ऐप होती थी उस पर यूपीआई लिया जाता था, तो जो एक फ्रॉड अमाउंट की वाली सीरीज होती थी या वो पैसा वही रुकता था। अभी क्या हुआ कि इसके चलते पूरा खाता ब्लॉक होने लगा। जब खाता ही ब्लॉक हो जाएगा तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? चुनौती व्यापारी के सामने बड़ी खड़ी हो गई। तब हमने जाके फैसला लिया है कि हम यूपीआई के बजाय, जब तक सरकार कोई इस छेद को बोरने का काम नहीं कर पाएगी, ये छेद बन गया है, बहुत गहरा नासूर हो गया है और इसमें कई सारी ताकतें लगती है हमको शामिल होना, तो हम चाहते हैं कि हम नगद का व्यापार करें। हमने ये कोशिश शुरुआत की है इंदौर के रेडीमेड व्यापार से। लगता है देश में अब ये क्रांति आने वाली है कि हम नगद पर भरोसा करें, क्योंकि जहां फ्रॉड होगा और व्यापारी नुकसान में जाएगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। व्यापारी फायदे के लिए बेटा सरकार का भी खजाना भरता है और अपना घर भी चलाता है, अपने साथ में अपने कर्मचारियों और अपने साथ से जुड़े लोगों का पेट भी पालता है। इस तरीके से खाते बंद होते हैं तो ये नुकसान बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी हमने एक तात्कालिक फैसला लिया है कि जब तक निर्णय नहीं आते हैं तब तक हम नगद व्यापार करें या क्रेडिट कार्ड का यूज करा लें ग्राहक से। व्यापारियों का कहना है कि साइबर फ्रॉड के चलते उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ग्राहकों की आदत यूपीआई पेमेंट की हो चुकी है, लेकिन जब पेमेंट अटक जाए तो दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि कैश और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने की वजह से ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को परेशानी हो रही है। दरअसल यूपीआई अब व्यापार का मुख्य तरीका बन चुका है और ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड के कारण इसमें सुरक्षा की कमी महसूस हो रही है और जब तक यूपीआई की सुरक्षा बढ़ाई नहीं जाती तब तक वे कैश मोड पर ही व्यापार करेंगे। इंदौर की व्यापारी एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जब तक साइबर फ्रॉड पर अंकुश नहीं लगाया जाता या सरकार कोई नीति नहीं बनाती तब तक वे कैश मोड पर ही व्यापार करेंगे। इसलिए दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं और कई व्यापारी इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि व्यापार की सुरक्षा बनी रहे और ग्राहकों को परेशानी न हो। हम कहीं किसी बड़े फ्रॉड के उस हिस्से से बचे, हमारी ये कोशिश है और सरकार का ध्यान आकर्षण कराना हमारा मुद्दा है। इसलिए हमने ये एक फार्मूला लागू किया है कि हम यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट लेने के बजाय कैश का पेमेंट ले लें। कितने दुकानदार हैं इसमें साथ में और कितने दुकानदार? हम इंदौर में रेडीमेड में तो 600 व्यापारी हैं। अभी हमने इंदौर गारमेंट से की, हम कोशिश कर रहे हैं आगे हमारी जुड़ी संस्थाओं से बात करते हुए अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगली बैठक में, इस बोर्ड की बैठक में इसको भी ले जाएं और भारत सरकार के भी जो भी नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहें कि कहीं ना कहीं इस चूक को खत्म कराया जाए। या जो भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड को व्यापारी नहीं करता है, व्यापारी तो व्यापार करता है। कोई चोरी करके आए और माल खरीद के ले जाए तो व्यापारी चोर नहीं हो सकता, व्यापारी ईमानदार है, उसको इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बैंकों और इस रिजर्व बैंक को भी इस तरफ से कहीं ना कहीं नीति बनाना होगी। ऐसे में अगर गलती से आपके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ही टिप्स है जिसे समय रहते अप्लाई किया जाए तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। अगर फ्रॉड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए हुआ है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि यूपीआई फ्रॉड होने पर यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को सूचना दें और आप यूपीआई ऐप में सर्विस प्रोवाइडर को फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए रिफंड की मांग कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिलती है तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं। आने वाले टाइम में भी जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, हर चीज, हर पहलू उसका सही नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं नेगेटिव पहलू भी होता है जो साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, लेकिन आप भाग भी नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं भागने वाली अप्रोच हो गई है, क्योंकि देखिए हमें ये मानना पड़ेगा कि आप आज के जमाने में इंटरनेट से भाग नहीं सकते, आप नई टेक्नोलॉजी से नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी चला रहे हैं, आप इन चीजों से घिरे रहेंगे तो भागना हमारा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं कि यूपीआई इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप करिए इस्तेमाल, आप कैश का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में रखिए। वो चीजें दिमाग में रखेंगे तो आने वाले टाइम में स्कैम आप होने से आपके साथ बच सकता है। पहला कि आप हमेशा ये कहिए कि आपका जो यूपीआई है वो आपके मेन बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेन अकाउंट से कनेक्टेड है तो स्कैम हुआ तो आपके सीधा मेन जो अकाउंट है वो इंपैक्ट होगा। आप यूपीआई का एक और अकाउंट बना दीजिए और उसमें स्पेसिफिक अमाउंट रखिए, थोड़ा सा अमाउंट रखिए कि कल को अगर होती भी है
क्या कहते हैं, कल को स्कैम भी होता है तो वो थोड़े पैसे ही जाएं, वरना अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपके यहाँ पे पेमेंट्स आती रहती हैं, तो टाइम टू टाइम उनको निकालते रहिए कि आपका जो यूपीआई जो अकाउंट है वो खाली रहे, पहला। दूसरा, आप भरोसा मत करिए किसी पे, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूं, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब किसी चीज पे इंटरनेट पे बहुत भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो आपको बहुत लालच दे रहे हो, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर क्रिमिनल्स इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद अगर आपको 30 दिनों के अंदर रिफंड या कोई जवाब नहीं मिला तो बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल कंप्लेंट से शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस के तहत आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर या फिर crpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि यूपीआई पेमेंट के जरिए हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।